نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 109 اور اس والیوم کی حدیث نمبر 748 748 نمبر حدیث سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ایک دو سبق ہم نے جو دیکھے، اس میں کھانے پینے کے آداب، اس موضوع پر بہت ساری مختلف اینگل سے یا مختلف اس کے ٹاپک جو ہیں وہ احادیث اس کی ہمیں دیکھی ملی۔ اپنے پچھلے سبق میں بھی ہم نے دیکھا کہ کھانا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، اور اگر کھانا کھان شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور پھر کچھ ہم نے حدیث میں کچھ دعائیں بھی دیکھیں جو کہ کھانا کھانے کے بعد اگر وہ دعائیں کر لیتا ہے کوئی یا دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کھانے پینے کے آداب جو ہیں، پھر کس طرح سے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ کھاتے تھے، تو اسی موضوع یا اسی اسی طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں، اور ہمارے اگلے ٹاپکس جو ہیں وہ بھی اسی سے متعلقہ ہیں کہ کھانے پینے کے آداب جو ہمیں ہماری شریعت، ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے۔ گو کہ ان میں تقریباً زیادہ تر آداب یا زیادہ تر ہمارے معاملات جو ہیں وہ انہی معاملات سے ملتے جلتے ہیں، روزانہ جو ہمارے روزانہ کے معمول ہیں، اس کے باوجود ان کو سمجھنا کہ یہ ہماری شریعت میں بھی یہ ہے، اور پھر جب ہم ایسے کام کریں تو سنت نبی سمجھ کر کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ہمیں ایکسٹرا انویسٹمنٹ نہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ، کچھ بھی ایسا ایکسٹرا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جب ہم اپنی نیت میں، اپنے ارادے میں، اپنے ویو میں یہ رکھیں گے کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے کیا ہے یا اس طرح کرنے سے کی تاکید کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اجر میں بھی اضافہ کرے گا، اور جو چیز ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہ صرف دنیا میں اس میں برکت حاصل ہوگی اور ہمیں دنیا میں آسائشیں ملیں گی، بلکہ آخرت کے لیے اس میں یقیناً جو ہمارے لیے نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہوں گی۔ تو بڑھتے ہیں، آج کا چیپٹر نمبر 109 جو ہے اس کا موضوع تین انگلیوں سے کھانے، انگلیوں انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کے پسندیدہ ہونے، اور چاٹنے سے پہلے انہیں صاف کرنے کی کراہت، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے، اور چاٹنے کے بعد انگلیوں کو کلائی اور تلوؤں وغیرہ سے صاف کرنے کا بیان۔ یعنی اس چیپٹر میں جو احادیث ہمیں ملیں گی وہ مختلف موضوعات جو ہیں وہ کور کرتی ہیں، جس میں تین انگلیوں کے ساتھ کھانا،
यानी कि ना तो बहुत ज्यादा मकदार में खाना लेकर एक नवाला भरना, और ना ही बहुत ही कम। 3 उंगलियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो हम देखेंगे। फिर खाना खाने के बाद प्याले को चाटना, या उंगलियों को चाट लेना जो है, या चटवा लेना, उसकी भी खास फजीलत है। उसके बारे में काफ़ी सारी अहादीस हम देखेंगे आज। उसके बाद फिर गिरे हुए लुकमे को उठाकर खा लेना, इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि ऐसा लुकमा जो गिर जाए उसको साफ करके खा लिया जाए, ना कि उसको शैतान के लिए छोड़ा जाए। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद अगर टावल वगैरह या पानी वगैरह मुयसर नहीं, तो फिर अपने हाथों को आपस में मिलाकर मसल कर जैसे साफ कर लेना, या कलाइयाँ वगैरह या तलवों वगैरह से उसको उनको साफ कर लेना, उसकी भी हमें इजाज़त है। तो ये कुछ जो मौज़ूआत जो हमें अगली अहादीस में मिलेंगे, उनकी समरी कह लें कि ये चैप्टर का जो उन्वान है उसमें रखा हुआ है। सबसे पहले 748 नंबर हदीस, जो कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो अपनी उंगलियां साफ ना करे यहाँ तक कि पहले उन्हें चाट ले या उन्हें चटवा ले। जब तक खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां खुद न चाट ले या किसी से चटवा ना ले, तब तक उनको साफ ना करे। उनको साफ न करने के बाद में मतलब टॉवल वगैरह या पानी वगैरह से धोना जो है, उससे पहले अपनी उंगलियां जो हैं उनको अच्छी तरह से चाट लेना है। इसकी यहाँ पर हमें ताकीद है। और चटवा लेना से मुराद है कोई बहुत ही करीबी आपका चाहने वाला, जैसे मियाँ या बीवी का आपस में ताल्लुक होता है, या बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनसे एक बड़ी खास मोहब्बत होती है। तो इस तरह के कुछ मैटर्स में अगर उंगली चटवा भी ली जाए तो उसकी भी कोई ममानत नहीं है, वो भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो उंगलियां चाट लेना चाहिए खाना खाने के बाद। और उसके बाद अगली अहादीस भी हम जब इसको देखें, तो उंगलियां और बर्तन जो है, उंगलियां चाट लेना और बर्तन को भी चाट कर साफ कर लेना, कि कोई पता नहीं कि बरकत जो है वो खाने के किस हिस्से में है। अगली एक दो हदीस जो है वो भी हम देखते हैं, फिर इस मौजू के ऊपर एक आध पॉइंट अगर हुआ तो फिर इजाफा करेंगे। अगली हदीस ये सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 उंगलियों से खाना खाते हुए देखा। जब आप खाकर फारिग हो गए तो उनको चाट लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उंगलियों से अपना खाना खाना खाते हुए उन्होंने देखा। और खाना खाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को चाट कर साफ किया। ये इस हदीस का मतन है। यानी 3 उंगलियों से खाना जो है, ये एक मोतदल अंदाज है कहने खाने का, या मोतदल मिकदार है। एक नवाला जो हम मुंह में डालते हैं उसकी 2 उंगलियों के साथ तो वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर 2 उंगलियों के साथ करें तो एक चुटकी बनती है, वो फिर बहुत ही कम मिकदार हो जाती है। और 2 से ज्यादा उंगलियां या पूरा हाथ अगर लगाएं तो फिर वो बहुत ज्यादा खाना जो है वो नवाला बहुत बड़ा बन जाएगा, या इस तरह से मामला। तो तो ये एक मोतदल अंदाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत से हमें मिलता है। 3 उंगलियों से मुनासिब मिकदार में नवाला बनाकर लेना जो है वो सुन्नत है। ताहम यहाँ पर जो शारे हैं, शरा लिखने वाले सलाहुद्दीन यूसुफ, उन्होंने इसमें इजाफा किया है कि अगर तो हस्बे ज़रूरत 3 से ज़्यादा उंगलियां लगानी पड़े, अ, या पूरे हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़े, तो वो भी जायज़ है। उसमें कुछ इस तरह की ममानत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुनासिब मकदार में और मुनासिब अंदाज में और मारूफ तरीके से अपना कर मतलब नवाला बनाना और लेना, वो हमारे लिए अहम है। और फिर उंगलियों को चाट लेना, इसकी दोबारा ताकीद आई इस हदीस में। अगली हदीस को भी अगर हम देखें तो ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां और प्याला चाटने का हुक्म फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कौन से खाने में बरकत है। ये उंगलियां और प्याला चाटने की जो ताकीद है, जो बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नसीहत हमें आगे भी बहुत सारी अहादीस में मिलेगी, उसकी एक मेन रीज़न जो है वो यहाँ पर इस हदीस में हमें मिली कि
तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के कौन से हिस्से में बरकत है, कि तुम्हारे कौन से खाने में बरकत है। अब खाना जब हम खाया जाता है तो इसके एक पहलू जो है, वो रूहानी पहलू जो है, वो हमें यहाँ पर ये मिलता है कि कौन से खाने में, खाने के कौन से हिस्से में बरकत है। और कुछ हदीस गालिबन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी खाना इंसान जो है वो खाता है, तो उसके किसी एक हिस्से में बरकत होती है। अब इंसान को नहीं पता कि वो बरकत जो है वो उसके किस हिस्से में है, क्या उसने पहले किसी नवाले में उस बरकत को मतलब हासिल कर लिया है, या उस नवाले, उस प्याले में बची हुई, उस प्लेट वगैरह में बचा हुआ खाना, या उसकी उंगलियों के साथ, उसके हाथों के साथ लगा हुआ जो खाना है, उस खाने में कहीं वो बरकत है जिसका यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। तो लिहाजा उस बरकत के हसूल के लिए चाहिए कि बर्तन जो है उसको भी, और उंगलियां जो है उसको भी चाट कर अच्छी तरह से साफ कर ली जाएं। ये तो एक रूहानी पहलू है, बगैर किसी दूसरी बात के या बगैर किसी दूसरी दलील के हमें इसको कबूल करना चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हुक्म दे दिया और वो हुक्म वाज़ेह है, दो टोक है, तो हमें इसमें कोई और उज़र या कोई और पहलू तलाश करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि फलां पहलू भी, फलां पहलू भी, या फलां फ़ायदा भी होगा, कोई फ़ायदा है या नहीं। अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो हमें मानना चाहिए। लेकिन इसके दूसरे एंगल जो हैं उनको भी अगर हम देखें, अपने अपने जो जो नजरिया है उसको ज्यादा तकवीत देने के लिए, कि हमारी प्लेट में, हमारी थाली में, हमारे प्याले में जो खाना मौजूद है, वो खाना जो है वो सिर्फ हमारे किचन में आने के बाद, हंडिया में पकने के बाद हमारी प्लेट तक नहीं आया, बल्कि वो खाना, वो खाने का एक एक दाना जो है, उसने एक बड़ा लंबा सफर तय किया है। बहुत लंबा सफर तय करके वो एक दाना जो है, या अनाज का या जिस भी चीज का, एक खाने का एक जरा जो है, वो बड़ा लंबा सफर तय करके उस हमारे खाने की प्लेट तक, फिर हमारे हाथों की उंगलियों तक या चम्मच तक, फिर हमारे मुंह तक पहुंचा है। उसको पहले बीज बोया गया, जमीन तैयार की गई, उसमें पानी लगाया गया, बीज बोया गया, उसके बीज की फिर हिफाजत की गई, फिर जमीन तैयार की गई, फिर उसमें फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह या जो भी है, उस पौधे का बड़ा ख्याल ध्यान रखा गया। फिर वो अनाज जो है वो उगा। उस उगने में हो सकता है 2 4 6 महीने जो है वो अपनी फसल तैयार होने में उसके लगी, या इससे भी ज्यादा। फिर वो उसको काटा गया, उसको छांटा गया, उसको साफ किया गया, उसको पैक किया गया, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया खेतों से लेके मंडियों तक। फिर वो मिडल मैन के हाथ में पहुंचा, फिर रिटेलर के पास पहुंचा, फिर रिटेलर से फिर आम जो सारिफ है, जो एंड यूजर जो है उस तक पहुंचा, और फिर एंड यूजर जो है उसको घर लेकर आया और उसके किचन में पहुंचा। तो ये यहाँ तक पहुंचने के तो इंतहाई मुख्तसर से मराहल हमने 2 जुमले में कवर कर दिए। इसको कई महीने लगते हैं हमारी प्लेट तक पहुंचने में। तो लिहाजा हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि रिस्क को ज़ाया करना, और फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें रिज्क अता किया, उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। रिज्क को ज़ाया करना गोया के उसकी नाशुक्री करने के मुतरादिफ है। तो नाशुक्री से भी बचना चाहिए हमें, इस चीज़ का भी एहसास रखना चाहिए। फिर दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जिनको ऐसा खाना मुयसर है कि नहीं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे और हमें तौफीक दे कि हम भी कुछ दूसरों की जहाँ तक मुमकिन हो मदद करें। ये सारे पहलू भी अगर हम साथ कर लें, और यकीनन ये बहुत सारे पहलू जो हैं उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर आने वाली जो अहादीस है उनको भी सपोर्ट करेंगी, कुरान मजीद की आयत भी हमें उसमें सपोर्ट करेंगी। तो ये सारे जो ओपिनियन जो हैं या सारे एंगल जो हैं उनको जब सब जमा करके हम एक जगह पर रखें, तो ये कोई छोटा मैटर नहीं बनता, या आम सा एक इग्नोर करने वाला मैटर नहीं बनता कि हम खाने को ज़ाया करें। हत्ता कि उंगली के ऊपर लगा हुआ खाना जो है, जो कि खाना खाने के बाद, खाना मुकम्मल करने के बाद हमारे हाथों में लगा रह जाता है, उसको भी हम ज़ाया करें, या गिरा हुआ नवाला आगे जाकर आएगा उसको भी हम कहीं ज़ाया कर दें। तो ये हमें इसका खास एहतमाम करना चाहिए और ख्याल ख्याल रखना चाहिए। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें, मैं भी बहुत सारा कमज़ोर हूँ। ऐसी अहादीस जब मैं तैयार करता हूँ मतलब सुबह सबक के लिए, तो मैं रात को बड़ा देखता रहता हूँ कि मैं खुद तो इन पर अमल पता नहीं कर पाता हूँ कि नहीं, लेकिन दूसरों को तरगीब दे रहा हूँ। बहरहाल मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला
मेरी बेशुमार खामियों को दूर करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम ऐसे छोटे छोटे मैटर्स में, तो जो कि बिल्कुल आसान हमारी रोज़ाना के मामूलात में बगैर की हमेशा मेहनत और मुशक्क़त के हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इन पर अमल भी कर सकें, आमीन। तो खाना, जो खाने के बाद बर्तन को साफ कर लेना और अपनी उंगलियों को चाट लेना, एटलीस्ट आज से हम अगर नहीं करते तो हम उसको शुरू करें और उसका ख्याल करें, और अपने बच्चे या अपने वो बहन भाई जिनके ऊपर हमारी बात असर करती है, उनको भी ये ना सिर्फ बातों बातों में बताएं बल्कि अमल करके भी उनको ये चीज़ जो है वो बतानी चाहिए। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे कि ऑयल जो है, वो खासकर जमा हुआ तेल जो है वो कई दफ़ा खाने में रह जाता है। वो वैसे भी, ऑयल तो वैसे भी मतलब प्रूवन है कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसको जब साफ करेंगे तो उसके कुछ दूसरे साइड इफेक्ट्स वगैरह भी है, इस तरह के कुछ मैटर हैं। तो वो अंडरस्टूड कुछ बातें होती हैं, लेकिन खाने के जर्रे और खाने के दीगर जो इस तरह के आदाब हैं उनका ख्याल रखना जहाँ तक मुमकिन हो, हमें उसका एहतमाम करना चाहिए। इससे अगली हदीस जो है ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, और ये भी साबिक रावी यानी हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले, और उसमें जो गंदगी या मिट्टी वगैरह लग गई हो तो उसे साफ कर ले और उसे खा ले, और उसे शैतान के लिए ना छोड़े, और अपने हाथों को तौलिए से ना पूछे यहाँ तक कि अपनी उंगलियां चाट ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि उसके कौन से खाने में या उसके खाने के कौन से हिस्से में बरकत है। अब ये हदीस जो है इसमें भी पिछले ही मौजूआत हैं, इसमें इजाफा इजाफा हुआ एक मौजू का जो है, वो है कि अगर कोई नवाला गिर जाए खाते हुए, या वैसे गिरा हुआ नवाला अगर है तो उसको उठाकर उसको साफ करके मट्टी वगैरह उससे दूर करके, मतलब हाथों से भी उसको साफ किया जा सकता है, या ज्यादा अगर कोई है तो पानी वगैरह से हल्का फुल्का साफ करके, बहरहाल उसको थोड़ा साफ करके उसको खा लेना चाहिए। क्यों उसको शैतान के लिए ना छोड़े, क्योंकि इससे अंदाजा होता है कि अगर वो खाना जो है ऐसा वो जाया करेगा तो वो शैतान के पेट में जाएगा, गोया कि हम वो शैतान के लिए खाना वो छोड़ रहे हैं। तो लिहाजा उस खाने को, उस लुकमे को शैतान के लिए छोड़ने से बेहतर है कि तुम खुद खा लो। इसमें भी अगर हम पिछली हदीस में हमने देखा कि खाने का नवाला तो एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, खाने का एक दाना जो है वो भी मतलब हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुयस्सर किया, हमारे हमारे हमें मुहैया किया। तो उसको शैतान से, और शैतान जो है वो तो फिर आपको पता है कि जो शैतान को पालता है गोया कि वो अपने लिए जहन्नम के गड्ढे जो है वो खोद रहा है। जो शैतान से दूरी इख्तियार करता है या शैतान को दुत्कारता है, तो वो गोया अपने आप को उस अंजाम से बचाता है, उस घड़े वाले अंजाम से, और फिर वो अपने आप को एक एक बेहतरीन घर की तरफ अपने अपना सफर जो है उसको गामजन रखता है। तो शैतान से दूर रहने, शैतान को धुतकारने, शैतान को पालने से हमें एहतराज करना चाहिए, हमें उसकी ताकीद भी इस हदीस में मिलती है। अब इसमें जो हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ ने यहाँ पर शरह जो लिखी है, इसके फवायद में जो कुछ इजाफा किया, कि इसमें जैसा कि तज़किरा हुआ कि अल्लाह के जो नेमतें हैं या अल्लाह की तरफ से जो रिस्क है उसकी नाकदरी जो है उससे हमें बचना चाहिए। आजकल लोग इस हुक्म नबवी को भी अहमियत नहीं देते, और इस तरह करते हैं, करने में तो अपनी तौहीन और सुबकी महसूस करते हैं, बल्कि सितम बलाए सितम ये कि लुकमा दो लुकमा नहीं, सेरों के हिसाब से खाना बाहर गलियों और घोरों में फेंक दिया जाता है, घूरों में, तलफ़ुज़ मुझे सही पता नहीं इसका, फेंक दिया जाता है। फिर इस तरह बर्तन को चाट कर साफ करना तो कुछ बर्तनों में खाना छोड़ देना जरूरी समझा जाता है, जिसे बिल आखिर कूड़ों के ढेरों में या नालियों में गिरा दिया जाता है। अफसोस, उम्मत अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उसवे हसना से कितनी दूर हो गई है। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत बड़ी हकीकत है जो शरह लिखने वाले ने, हजरत हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ ने यहाँ पर लिखी है कि हमारी जो रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ चीज़ें जो हमें सुन्नत हमें सिखाती है, उसको हम मतलब
उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, बल्कि उल्टा उनको आदाब के ख्याल तसव्वुर करते हैं, जबकि हमारी शरीयत जो है वो हमें जो आदाब बताती है उसमें ये आदाब जो हैं वो शामिल हैं। तो हमें अपनी शरीयत के आदाब जो हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। खाने को किस तरह से शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात में ज़ाया किया जाता है, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे अगर हमसे कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं। और फिर खाने को छोड़ देना, खासकर मतलब ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, जो कॉलर ड्रिंक्स वगैरह जो है उनको मतलब थोड़ी सी मिकदार में वो छोड़ देना जो है वो कह लें कि तहजीब जो है का हिस्सा जो है वो अक्सर जो है वो सुनने में आया कि कहा जाता है कि मतलब पूरा पी जाने से मतलब ये है कि बता पता कितना हिर्स और लालची बंदा है, तो थोड़ा सा छोड़ देना। ऐसी हमें बेतुकी किस्म के जो नज़रियात हैं या अफकार हैं उनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, उससे हमें अपने आप को महफूज रखना चाहिए। खाने को किसी भी अंदाज में ज़ाया करना वो जानी कि अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है, नाशुक्री है। हमें अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री जो है उससे बचना चाहिए। और फिर वो खाना जो है वो ढेरों में और कूड़े करकट में जाता है। अब ये देखें कि एक खाने का जरा जो है वो कितना लंबा सफर तय करके प्लेट में पहुंचा, और प्लेट से वो कूड़ादान में चला गया, तो उसकी क्या हमने कदर की, क्या उसकी कदर अल्लाह ताला की उसके रिज्क की हुई कि वो 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, या अगर फलों की सूरत में देखें तो वो कई कई साल जो है लगते हैं एक फल के दरख्त को तैयार होने में, और फिर उसके ऊपर फल लगने में भी पूरा एक सीजन जो है, साल चाहिए। तो किस तरह से नाकदरी है कि अल्लाह ताला ने तो उसको मुयस्सर किया, हमारे जो टेबल है खाने की उसके ऊपर ला कर रखा, पहुंचा दिया, और हमने उसकी नाकदरी करते हुए कूड़ेदान में फेंक दिया। हमें अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मैटर्स में अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगली हदीस, ये भी साबिक रावी जो कि हजरत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जी हजरत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। और ये हदीस भी सही मुस्लिम से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा शैतान तुम्हारे एक के साथ उसके हर काम के वक्त में मौजूद रहता है। हर एक के साथ शैतान जो है वो मौजूद रहता है, हत्ता कि उसके खाने के वक्त भी उसके पास मौजूद रहता है। बस तुम में से किसी से लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले, और उसमें जो गंदगी वगैरह लग गई है उसे साफ कर ले, फिर उसे खा ले, और उसे शैतान के लिए ना छोड़े। फिर जब खाना खाकर फारग हो जाए तो अपनी उंगलियां चाट ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि उसके कौन से खाने में बरकत है। ये भी अब पिछली हदीस जो है उन्हीं की तायद करने की एक और हदीस है, जिसमें खाने को गिरे हुए खाने को, लुकमे वगैरह को उठाकर खा लेना, बजाय इसके कि वो शैतान के लिए छोड़ दिया जाए, वो यहाँ पर है। बाज दफा होता होता है कि गिरा हुआ लुकमा जो है वो ऐसा लटपट लुटपुट जाता है कि मिट्टी उसमें सरायत कर जाती है, या गीला लुकमा जो है खात वगैरह उसमें ऐसा हो जाता है। तो अगर वो लगे कि मुमकिन नहीं उसको खाना, कि किस कदर वो मिट्टी वगैरह या कुछ गंदगी उसको लग गई है, तो फिर भी उसको एहतियात के साथ किसी जानवर वगैरह या किसी परिंदे वगैरह के लिए मतलब एहतमाम कर लेना चाहिए, क्योंकि परिंदे और जानवर जो हैं वो भी मतलब इसी तरह से खाने अपने चुगते हैं और खाते हैं। तो हमें एक ये दूसरी तरतीब भी, खाना कम अज कम हम शैतान के लिए ना छोड़ें, कम अज कम शैतान के लिए ना छोड़ें, किसी दूसरे अंदाज से उस खाने को इस्तेमाल में लेकर आए। खुद सबसे ज्यादा ताकीद तो यहाँ पर खुद ही है, लेकिन इससे पहले मुझे याद पड़ता है कुछ हदीस में हमने इस तरह का तज़किरा किया था कि मतलब परिंदों के लिए या जानवरों के लिए या दूसरे जो इस तरह की मखलूक है जो कि इस तरह के खाने जो है वो मतलब उनकी रोज़ाना का मामूल है, तो उनके लिए वो एहतमाम कर देना चाहिए ताकि वो ज़ाया ना हो, और बतौर ख़ास ताकि वो शैतान की पहुंच से दूर रहे खाना वो। इसी तरह अगली हदीस भी सही मुस्लिम से है, और ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे अपनी तीनों उंगलियां चाट लेते। तीन उंगली से वो खाना खाते, खाने की एक रिवायत जो हमने पहले देखी। तीनों उंगलियां चाट लेते और फरमाते कि जब तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले, और उससे गंदगी, मट्टी, रेत वगैरह को साफ कर ले और खा ले, और उसे शैतान के लिए ना छोड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये हुक्म भी देते थे
کہ ہم سالن کا برتن چاٹ کر صاف کیا کریں، اور فرماتے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ بھی پچھلے ہی موضوعات کو کور کرتی ہے۔ اس میں ایک اضافہ جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ برتن کو چاٹنا، پلیٹ یا پیالہ وغیرہ جو ہے اس کو بھی چاٹ کر یا انگلی سے اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے پھر انگلی کو چاٹ لینا، اس کی یہاں پر ہمیں تاکید ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی وہی کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے یا کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت سعید بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں، آگ پر براہ راست آگ پر جو پکی ہوئی چیزیں، جیسے کہ یہ باربیکیو وغیرہ کیا جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ آگ کے اوپر اس کو پکایا جاتا ہے مطلب مختلف طریقوں سے، تو یہ غالباً اسی کی بات ہو رہی ہے کہ بھنا ہوا یا باربیکیو یا روسٹڈ باربیکیو وغیرہ جو ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ کیا ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت جابر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کے کھانے جو آگ پر پکے ہوتے تھے، یہ کھانے یقیناً بڑی مرغوب غذاؤں میں سے ہیں۔ باربیکیو کرنا ایک بڑا پسندیدہ بھی ہے، اور اس میں گوشت وغیرہ، چکن یا مٹن وغیرہ، وہ ایکسپینسو کھانے بھی ہوتے ہیں، اور اس کو تیار کرنا بھی تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے، تو یہ وی آئی پی یا کھانوں میں کہہ لیں کہ شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت جابر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے کھانے جو آگ پر پکے ہوتے تھے ہمیں بہت کم میسر آتے تھے۔ پس جب ہم اس قسم کا کھانا کھاتے تو رومال تولیے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے، ہم بس یہ ہتھیلیاں اور کلائیاں اور تلوے ہی تھے جن سے ہم پونچھ لیتے تھے یا اس کو اپنے ہاتھوں کو پھر صاف کر لیتے تھے کھانے کے بعد، پھر ہم نماز پڑھ لیتے اور نیا وضو نہ کرتے، یعنی نیا وضو کیے بغیر ہم آ، اپنے ہاتھ جو ہیں مطلب ڈیفینیٹلی وہ چاٹ لینا جو ہے وہ تو سنت کے مطابق یقینی کرتے ہوگے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہاتھ دھونے وغیرہ پانی وغیرہ میسر نہیں ہے تو، اور تولیہ وغیرہ نہیں ہے، تو ہاتھوں کو آپس میں مسل کر صاف کر لینا، وہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر کلائیاں اور تلوے وغیرہ جو ہیں ان سے پھر اپنے ہاتھ جو ہے وہ صاف کر لیتے تھے، اور نیا وضو جو ہے نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث میں وضو کا مسئلہ پوچھنے کا کوئی ریزن یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی اسلام میں ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا جو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، کہ ابتدائی اسلام کے شروع میں تھا کہ آگ پر پئی ہوئی چیز جو ہے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اب جو ہمارے پاس جو ہدایات ملتی ہیں ہمیں اس حدیث سے، اس کے مطابق وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بغیر ہی نیا وضو کی ضرورت نہیں ہے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح اگلی حدیث، یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے، اور یہ چیپٹر بھی آگے گیا رہا ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا ملتی جلتی احادیث جو ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر، یعنی تین چار ٹاپکس کے اوپر تواتر کے ساتھ ہم نے حدیث دیکھی۔ اگلا چیپٹر جو ہے 110 نمبر، کھانے پر ہاتھوں کی زیادتی، یعنی کھانا تھوڑا ہو مگر کھانے والے زیادہ ہوں، یہ کھانے میں برکت کی ایک بڑی بہترین جو طریقہ جو ہے وہ ہمیں ان حدیث میں ملے گا، کہ اگر مل کر کھانا کھایا جائے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، چاہے ایک ہی برتن میں یا ایک ہی جگہ پر، تو اس سے کھانا کی میں برکت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی کچھ حدیث ہم نے اس سے پہلے بھی سبق میں پڑھی تھی۔ بہرحال یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث 755 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو اور تین کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ دو آدمی کو کھانا تین آدمی کے لیے اور تین کا چار آدمی کے لیے، یعنی عام روزانہ کے معمول میں ہم جتنی مقدار میں کھانا اپنی پلیٹ میں یا اپنے ایک اکیلے فرد کے لیے رکھتے ہیں، اگر بوقت ضرورت ہمارے پاس کچھ لوگ زیادہ ہیں، کھانا کھانے والے زیادہ ہیں، اور کھانا جو ہے وہ نسبتاً دیکھنے میں وہ کم لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے کریں تو وہ
اللہ ताला उसमें बरकत डालते हैं, और दो आदमी, एक आदमी का खाना दो आदमी, पर दो आदमी को खाना तीन को, और तीन का खाना चार आदमी के लिए काफ़ी है। अगली अहादीस में हम एक का खाना दो के लिए भी हमें मिलेगा। तो बहरहाल ये बरकत की एक वजह है। और जब इकट्ठे, या इसमें एक दूसरा पहलू ये भी निकलता है कि अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं और खान कम है, तो आप अपने खाने की मिकदार को कम रखें और अल्लाह ताला से बरकत की उम्मीद रखें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको उसमें से ही तसल्ली भी कर देगा, शेर शेर भी कर देगा, और आपका थोड़ा खाना ज़्यादा लोगों के लिए भी काफ़ी हो जाएगा, उसमें बरकत इस तरह से आएगी। अगली हदीस भी सही मुस्लिम से है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक आदमी का खाना दो को, और दो का खाना चार को, और चार का खाना आठ आदमियों के लिए काफ़ी है। तो इसमें भी वही ये टॉपिक है, और उसके फवायद में इसे मालूम हुआ कि मिलकर खाना खाने में बरकत है, और इस तरह थोड़ा खाना ज़्यादा आदमी के लिए काफ़ी हो जाता है। अलावा अभी इसमें बाहम उल्फत और मोहब्बत में भी इजाफा होता है। इसकी मज़ीद तफसील के लिए बात नंबर 62, इससे पहले हम गुजर चुका है यह चैप्टर, उसमें इस तरह की अहादीस जो है वो आई थी। बहरहाल खाना इकट्ठे बैठ कर खाना, उससे भी बरकत आती है। और अगर ज़्यादा अफराद हैं, खाना कुछ कम मालूम हो रहा है क्वांटिटी में, तो थोड़ा अपनी मिकदार अगर कम कर लें, तो वो खाना जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए पूरा भी आ जाता है, और उसमें यकीनन बरकत भी बढ़ती है। और फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत, और एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात जो हैं वो भी उभरते हैं। अगला चैप्टर जो है ये पीने के बारे में। अब यहाँ से आगे, पहले खाना खाने के मुतलका से अहादीस वगैरह, इससे आगे जो कुछ चैप्टर आएंगे या कुछ अहादीस हैं, वो पीने, मशरूब और पानी वगैरह पीने से मुतलका वो हैं। चैप्टर नंबर 111, पीने के आदब, और बर्तन से बाहर तीन मरतबा सांस लेने का इस्तेहबाब, और बर्तन में सांस लेने की कराहत, और बर्तन को मुब्तदा के बाद, यानी जिसने वो बर्तन जो है वो पेश किया है, या जिससे वो बर्तन खाना खाना जो है वो शुरू हुआ, मुब्तदा के बाद दाएं तरफ बारी बारी घुमाने का पसंदीदा होना। इसमें भी तीन चार टॉपिक जो हैं वो हमें मिलेंगे इसी तरह से मुख्तसर सी अहादीस में, कि पीने का अदब जो है वो क्या है, किस तरह से पिया जाए तीन सांस में, और सांस जो है वो बर्तन से बाहर लेना है, और बर्तन के अंदर सांस लेना जो है उसकी कराहत है। और फिर बर्तन जब किसी मजलिस में बर्तन को पेश किया जाए, तो अगर तो किसी एक फर्द के लिए वो पेश किया गया है, तो उस फर्द को पेश किया जाए। वो फर्द फिर आगे अपनी मर्जी से अगर वो आगे किसी को देना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो फिर वो अपनी राइट साइड जो है वहां से वो शुरू कर ले, ना कि लेफ्ट साइड से। या अगर मेजबान जो है वो खाना तकसीम करने लगा है, तो फिर वो दाएं तरफ से शुरू करे, ताकि दायां तरफ जो है वो चलता रहे। एक आदमी को मिला, उसने उसको पिया या उसमें से वो खाना लिया, फिर वो अपने दाएं तरफ को आदमी को मतलब आगे ट्रांसफर कर दिया, उसने भी अपना खाना लेके फिर वो दाएं। तो इस तरह से दाएं तरफ से चक्कर घुमाना, ना कि किसी बच्चे से शुरू करना है या किसी बुजुर्ग से शुरू करना है, बल्कि दाएं तरफ से बर्तन को घुमाना जो है, ये हमें इन अहादीस से, अगली हदीस से हमें मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। हदीस नंबर 757, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है ये, और यह बुखारी और मुस्लिम की मुतफिका ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने की चीज यानी मशरूब तीन सांस में पीते थे, यानी बर्तन बर्तन से बाहर तीन मरतबा सांस लेते थे। तीन सांस में पीने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पानी पीकर बर्तन से मुंह हटाकर तीन सांस लेना, फिर वापस थोड़ा सा पानी पीना, या मशरूब पीना, फिर बर्तन से पीछे हटाकर सांस लेना, और फिर वापस। इस तरह से तीन दौर करके या तीन मर्तबा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मशरूब जो है वो पीते थे। इसमें पीने वाली चीज तीन सांस में पी जाए, यानी पी कर बर्तन से मुंह हटाकर सांस लिया जाए, फिर थोड़ा पी कर मुंह बर्तन से बाहर करके सांस लिया जाए, तीसरी मतलब फिर इस तरह किया जाए। इसका फायदा यह है कि मैदा पर यकबारगी बोझ नहीं पड़ता, नीज आदमी हैवानी मुशाबत से बच जाता है। अलावा अजीम बर्तन में सांस ना लेने का खुशगवार असर उसके मुस्तकबिल पर पड़ता है। ये दो तीन चैप्टर जो हैं बताते खुद एक लंबी तफसील जो है वो रखते हैं अपने अंदर, लेकिन मुख्तसर अंदाज है अगर देखें तो तीनों ये सारे जो अनवान है या पहलू जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे तवज्जो के लिए। कि एक तो मैदे के ऊपर एक बार की बहुत खासकर
जब भागता हुआ इंसान आ रहा है या बहुत ज्यादा वो एक स्ट्रेस सिचुएशन में, तो ऐसी सूरत में पानी को घुट घुट करके पी लेना, या खास कर ठंडा पानी जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हिद्दत वाले जिस्म में ठंडा पानी जो है वो अचानक से पी लेना, इसके ऊपर मैदे के ऊपर भी असर होता है, आपके नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। मेडिकली अगर हम देखें तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा मुनासिब मकदार में थोड़ा थोड़ा करके अगर पानी पिया जाए तो वो जो है वो इस तरह के साइड इफेक्ट से इंसान जो है वो बचा रहता है। और फिर हैवानी मुशाबत यहाँ पर तज़किरा किया हज़रत सलाहुद्दीन यूसुफ ने, कि जानवर जो है वो इस तरह से पानी पीते हैं गुट गुट करके। अगर जानवरों को हम पानी पीते हुए देखें तो वो भी इसी तरह से तेज़ तेज़ और ज़्यादा ज़्यादा सा पानी पीने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बर्तन में सांस ना लेना, अगर बर्तन में सांस लिया जाए, हमें पता है कि सांस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी जो है वो डिस्चार्ज करती है, खारिज करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटेरियल है, मतलब हमारे जो एनर्जी जो हम हासिल करते हैं खाने वगैरह से, तो उसका जो वेस्ट है या उसका कूड़ा जो कह लें, कुछ कूड़ा जो है वो तो हम टॉयलेट वगैरह में वेस्ट करते हैं। और ये जो है ये मतलब जिस्म के दीगर जो जो गैसेस है उनका एक मजमुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सूरत में एक एग्जॉस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर लें जनरेटर वगैरह, इंजन वगैरह या गाड़ी वगैरह में पीछे जो मतलब साइलेंसर से धुआं निकल रहा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से इंसान जो है वो सांस जब लेता है तो अपने अंदर तो कार्बन ऑक्सीजन खींचता है, लेकिन बाहर वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, जो कि एक जहरीली गैस है, या जो कि एक नुकसानदेह गैस है। तो लिहाजा इस एतबार से भी अगर हम देखें तो खाने में सॉरी यानी पीने पीने वाले पानी में सांस लेना बर्तन के अंदर, गोया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के ऊपर हम फेंक रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज़ब भी हो जाती है, मतलब सरायत कर जाती है या मिक्स हो जाती है पानी में। तो इससे बहुत सारे और साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, और फिर खाने का यानी पीने का अपना एक लज्जत जो है या उसमें खुशगवारी जो है वो भी मतलब उसमें भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी, साइंटिफिक पहलू भी हमें मिलते हैं। और फिर अखलाकियात हमारी, और सबसे बढ़कर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, यही हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए कि हम इसके ऊपर अमल करें। अगली हदीस ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है। ये तिरमिज़ी की हसन हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऊंट के पानी पीने की मानद एक ही सांस में पानी मत पियो, बल्कि दो दो और तीन तीन सांस में पिया करो। और जब पानी पीने लगो तो अल्लाह का नाम लो यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो, और जब फारग होकर बर्तन उठाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह की तारीफ जो है वो करो। अब इसमें भी ये रिवायत जो है वो सनदन ज़ईफ इस ज़ईफ है, यानी इस रिवायत की सनद जो है वो ज़ईफ है। लेकिन पिछली हदीस और अगली हदीस के साथ हम देखा जाए तो इसके मतन में कोई इस तरह का इज़्तिराब नहीं है, बल्कि इसका मतन जो है वो सपोर्टिंग है। और ऊंट को जब पानी पीते हुए देखेंगे तो ऊंट तो कई कई लीटर पानी जो है वो एक ही सांस में पीता है, क्योंकि उसने तो पानी स्टोर करना होता है, और वो उसकी तो आदत ही एक अलग किस्म की होती है। तो लोगों से कहा गया कि एक ही सांस में पानी मत पियो, बल्कि दो और तीन सांस में पानी पिया करो। और जब पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये तो हम इससे पहले सीखा है। इसी तरह अगली हदीस ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू कुतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि बर्तन में सांस लिया जाए, बर्तन में सांस लिया जाए उसी तरह से जैसे कि ऊपर तज़किरा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बर्तन में सांस लेने से मना फरमाया। अगली हदीस भी इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी मिला हुआ दूध लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानब एक देहाती बैठा था। अब ये हमारे खाने की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका यहाँ पर मौजू है कि पानी मिला दूध जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानब एक देहाती था और बाएं जानब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया, फिर देहाती को अपने दाएं जानब जो देहाती बैठा हुआ था उसको दे दिया और फरमाया, दाएं वाला मुकद्दम है, फिर दाएं वाला
آخر تک، پھر دائیں یعنی دائیں والا مقدم ہے، اس کے بعد اس کا دائیں والا یعنی ایک دائیں طرف سے ایک پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ کھانا آگے آگے ٹرانسفر کرنے کا یہ چلتا ہے کہ اپنے سے دائیں طرف والے کو دیں، وہ اس میں سے لے لے یا پی لے یا استعمال کرے، پھر وہ آگے آگے دائیں طرف کو بڑھا دے، پھر آگے اس طرح سے بڑھتا جائے چلا جائے، یعنی یہ دور جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے چلنا چاہیے۔ تو آپ یہاں پر اگر اس حدیث میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف دائیں اور بائیں، ایک دیہاتی اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی یقیناً دونوں شخصیات جو ہیں وہ اپنے رتبے کے اعتبار سے بہت ڈفرنٹ ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے شروع کر کے اس دیہاتی کو وہ پیالہ جو ہے وہ دیا، تاکہ یہ سنت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اسی سنت کو تائید کرتے ہوئے اگلی جو احادیث ہیں وہ ہمیں مزید واضح کرتی ہیں اس موضوع کو۔ اگلی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم سے ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب یا پینے کی کوئی چیز یا دودھ وغیرہ جو ہے وہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ یعنی عمر رسیدہ لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک لڑکا، چھوٹا بچہ کہنے بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے پوچھا، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تجھ سے پہلے ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ سے ملنے والی اس اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اب اس حدیث میں ہمیں بہت سارے پہلو جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ کچھ کچھ لوگ یہ ہمارا کچھ ایک خیال یہ بھی ہے کہ بچوں سے شروع کرنا چاہیے، وہ ایک الگ سے سنیریو ہو سکتا ہے، لیکن جب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کے کوئی ایک اس طرح سے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جب کھانے کی ترتیب جو ہے، کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے کی یا کھانا دینے کی ترتیب جو ہے، اس میں بھی پھر بچوں اور بڑوں کا یا مطلب دوسرے قسم کی جو ترتیب ہے اس کی بجائے صرف یہ ترتیب جو ہے یہ جو اس حدیث میں بھی ہمیں ملتی ہے، غالباً آگے بھی ہمیں حدیث اس کی مزید تائید ملے گی کہ رائٹ ہینڈ جو ہے اسے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لڑکے سے پوچھا، اجازت لی کہ میں اپنے بائیں طرف جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے دوں، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا اور دائیں طرف کو بڑھانا یہ کس قدر زیادہ پسندیدہ تھا، یا کس قدر زیادہ اہم تھا، یا کس قدر زیادہ تائید ہمیں اس حدیث سے یا اس بارے میں ہمیں ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے بچے سے پوچھنا، اجازت مانگنا کہ میں کیا بڑے کو دے دوں، یہ یعنی کہ اس موضوع کے اوپر سب سے ایک اسٹرانگ پوائنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ اور پھر بچہ جو ہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لگا ہوا برتن جو ہے وہ کون چھوڑ سکتا تھا اس برکت کو؟ تو اس نے تو صاف کہا کہ میں تو آپ سے حصہ لینے میں میں کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو اس میں شرح جو ہے اس میں بھی یہی تذکرہ جو وہ کیا گیا ہے کہ کچھ کا خیال ہے کہ بچوں سے شروع کرنا چاہیے یا کچھ اس طرح کے متفرق معاملات، لیکن یہ حدیث کا عموم یہ ہے کہ ابتداء دائیں جانب سے کی جائے، یہ تقسیم کرنے والا اپنے آپ کو مقدم کرے، نہ ہی تقسیم کرنے والا اپنے آپ کو مقدم کرے، نہ ہی حاضرین میں سے کسی بڑے آدمی کو، بلکہ دائیں جانب سے آغاز کرے، پھر ترتیب وار تقسیم کرتا جائے، دائیں سے دائیں چلتا چلا جائے۔ تو اس کی شرح جو ہے اس میں بھی تفصیل جو ہے وہ اسی طرح سے ہمیں ملتی ہے۔ میرا خیال ہے یہیں تک رکتے ہیں ہم آج کا سبق، پھر انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ سبق میں۔ تو سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل چھوٹی چھوٹی اور بالکل دیکھنے میں معمولی معمولی سی باتیں جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن عمل کرنے میں بھی بالکل آسان ہے، کوئی ایسا مشقت والا کام نہیں ہے۔ بس ہمیں اپنی اپنے جو آداب ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا ہم میں اگر کوئی فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو جہاں تک ممکن ہو فائن ٹیون کریں، ان میں بہتری لائیں، تاکہ ان چھوٹی چھوٹی جو آداب ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سننے کے بعد، ان کو پڑھنے کے بعد
समझने के बाद उन पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाँ जी, कुछ इजाफा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, इजाज़त चाहते हैं फिर, मेरा ख्याल है तो आपको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई अपनी हमें अता फरमाए। हमारे मसाइल, कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियाँ, कुछ तकलीफ़ें, सेहत के बारे में, अपनी फैमिलीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में, वालदैन के बारे में, अपने रिज़्क और जॉब के बारे में, दीगर बहुत सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हर हर मामले में हमारे लिए आसानियाँ करे। हर हर मामले में जहाँ हमारे हमारी ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और फिर अल्लाह ताला हमें जो रिज्क अल्लाह ताला ने अता फरमाया है उसमें हमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दुनिया के रिज्क से आखिरत की कमाई जो है वो कर सकें। और आखिरत में अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन अंजाम जो है, बेहतरीन जो बदला है अपने ख़ास रहमत और फजल व करम का, उसके काबिल दुनिया में बनाए ताकि हम आखिरत में उसके हकदार ठहरें। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.